Let's continue with geometric progressions. We already did talk about the nth term and the sum to n terms of a GP. Consider the following question. We already had talked about the last question, if you recall, 8 plus 88 plus 888 and so on. So the question is very similar to that question. So we need to find this sum, 0.4 plus 0.44 plus 0.444 and so on to n terms. Exactly the same approach. Take say 4 common, 0.1, 0.11, next step, anyone याद है क्या किया था? Multiply and divide by 9. Yes, 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 0.9 हो जाएगा, 0.99, 0.999 and so on to n terms. Why only 9? 0.9 पहली टर्म को देखो, I can write this as 1 minus 0.1. 0.99 can be written as 1 minus 0.01. Think logically. You can convert this into the fraction. 99 by 100 लिखा हुआ है, तो वो 1 minus 1 by 100 हो जाएगा. So that way also, if you want to avoid the decimals, even in the first step, convert into the fractions. Next क्या बनेगा? 1 minus 0.001 and so on till n terms. Combine like terms together, so clearly 1 plus 1 plus 1 and so on. So 1 is added actually n times, क्योंकि n terms है और हर एक टर्म में से माइनस कॉमन, इन्हें 0.1 plus 0.01 plus 0.001 and so on to n terms. वन इज एडिड n टाइम्स, तो ये तो n हो गया, माइनस कहीं भी डाउट लगे एज मेंशन आप इसे बिल्कुल ऐसे कर सकते हो 1/10 प्लस ये 1/100 है विच इज 1/10 स्क्वायर, 1/1000 का मतलब 1/10 क्यूब. So I have seen most of the students are comfortable with this. तो आप ऐसे कर लीजिए, hardly matters. This is forming the GP. The first term 1/10. Common ratio is again 1/10. चेक कर लीजिए, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है. Now, since r is less than 1, let me use second formula. किस फॉर्म में करा था? a into 1 minus r power n upon 1 minus r. So, which formula I have applied? Sn is given by a into 1 minus r power n over 1 minus r. Further, it is about taking LCM and simple calculations. So n minus, नीचे कितना आ गया अगर आप ध्यान से देखें, ये 9/10. तो 9/10, 10 से 10 कैंसल, 1/9 टाइम्स 1 minus 1 upon 10 की पावर n बचेगा, like this.
Further you want to take the LCM, थोड़ा आगे simplify करना है, that you can always do, or even if you leave this as your required answer, that's perfectly fine. Any doubt to anyone? Class was supposed to start at 10:40 or 10:45. Anyone? मैं खुद शायद फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे हिसाब से 10:40 था. 10:40. 10:40. 40 only, right? So those who are joining late, can you please join on time? Check this out. If the first term and nth term of GP are A and B, so let GP be A, AR, AR square, n terms की बात करिए, AR n minus 1. If you note carefully and read the first line again, first term तो चलो A ही है, और nth term को B कहा है, means this is given as B. That is AR n minus 1 is B. इससे R power n minus 1 will be B by A. And R कितना आ जाएगा? Anyone? R की वैल्यू क्या आएगी? BR upon A. B by A की पावर 1 upon n minus 1. यहाँ ये पावर n minus 1 है लेफ्ट हैंड साइड में. RHS में जब आएगी तो ऑफ कोर्स इसका एंटी प्रोसेस वो 1 अपॉन हो जाएगा. अगर यहाँ मान लो, सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, अगर x क्यूब लिखा होता y, तो x क्या होता है? y की पावर 1/3 क्यूब रूट हो जाता. तो यहाँ बस n minus 1 का 1 अपॉन n minus 1. ये आ गई R की वैल्यू. अब फर्दर क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं. If P is the product of these n terms, given P is the product of these n terms, A into AR into AR square and so on, prove that P square is AB power n. तो वो तो चलो लास्ट स्टेप होगा, बाद में देखेंगे. लेट मी सिंप्लीफाई दिस लॉजिकली. देखिए सबसे पहली बात, ए ये आपस में अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड एन टर्म्स हैं, तो ए इंटू ए एन टाइम्स हो जाएगा ए की पावर एन. 3 4 बार अगर मल्टीप्लाई है 3 पावर 4 हो जाता है. तो ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ए पावर एन इंटू, इफ आई नोट केयरफुली, ये आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन टिल आर पावर एन माइनस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. बेस सेम है, इधर आर की पावर 1 है, बेस सेम, powers are added. 1 plus 2 plus 3 करते करते n minus 1 आ जाएगा. r की पावर लास्ट में n minus 1 है. क्लास 7th 8th का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सोचा है.
देन इन 10th ओनली, और अभी भी वैसे मैं बात कर चुका हूं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूला में n को n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? यहां n की जगह n-1 रख दिया, वन से वन कैंसल, n-1/2। इनफैक्ट दिस इज हाईली रिकमेंडेड। आप इसे एज अ फॉर्मूला याद कर लो कि अगर आपको 1 से लेकर n की जगह n-1 टर्म्स तक ऐड करना है तो वो होता है n-1/2। लर्न दिस एज अ फॉर्मूला। तो r की पावर मैंने क्या बता दिया? n-1/2। r तो मैं इक्वेशन 1 में निकाल चुका हूं, तो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, विच इज b/a की पावर 1/n-1, और इस पूरे की, ये तो अभी r लिखा है, इसकी पावर क्या है? n-1/2। तो 7th 8th में अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अच्छे से समझा हुआ है तब तो ये बहुत आसान है। और ये फॉर्मूला m इंटू एन हो जाता है। क्या मतलब? ये प्रोडक्ट और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n-1 से n-1 कैंसल, और क्या आ जाएगा? क्या बच गया एक्चुअली? b/a पावर n/2, जिसे मैं b पावर n/2 अपॉन a पावर n/2 लिख सकता हूं। अगेन a डिवाइड हो रहा है, बेस सेम बट डिवाइड है, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो p आ गया a की पावर n/2 इंटू बी की पावर n/2। पावर्स सेम आ गई, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, p स्क्वायर आ जाएगा, और इधर ए बी की पावर n। चेक इट आउट, यही आपको प्रूव करना था। Let it build logical and calculative at the same time। बहुत ध्यान से समझिए इसे। Before we move on, please mark your attendance, everyone। So in a school today only one student is present and he is also taken for some another practical or some other work. So that's the reason I'm sitting in my room and taking the class online. Check out this question. Show that ratio of इसकी sum of first n terms of GP to
sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 upon r power n. सिंपल लॉजिक की बात करेंगे. जिसने ये पहली लाइन समझ ली उसके बाद तो बहुत इजी है. लेट द जीपी बी. नॉर्मल जीपी क्या लिखते हैं? ए आर स्क्वायर करते करते ए आर n-1, और ये मैंने क्या लिखी है इसकी nth टर्म. बट अब आगे भी बात करी गई है. जीपी की कितनी टर्म्स ली हैं अल्टीमेटली? 2n 2n. टर्म्स. तो अब n प्लस 1th टर्म का मतलब इसकी अगली टर्म क्या होगी? ये होगी. सोचे जरा ध्यान से. ये कौन सी टर्म हो गई इसकी? n प्लस 1th टर्म. What will be its 2nth term? Anyone? 2n minus 1. सिंपल फॉर्मूला है. जो भी पावर आना है वो एक कम कर देते हैं. तो नथिंग डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग. ये हो गई इसकी 2nth टर्म. सो ये अगर ये जीपी मैंने करेक्ट डिफाइन कर लिया, इसके बाद तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. हाउ कम? वी नीड द रेशियो. विच रेशियो? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो यहां से लेकर यहां तक ये न्यूमरेटर बन गया, और किसके साथ लेनी है रेशियो? n प्लस 1th टर्म से लेकर 2nth टर्म तक, विच इज a r पावर n प्लस a r पावर n प्लस 1 एंड करते लास्ट में आ गया a r 2n माइनस 1. तो एज पर द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड दिस रेशियो. I can apply the formulas जो आपने याद करे हुए हैं, बट लेट मी थिंक लॉजिकली. मैं एक भी फॉर्मूला यूज ही नहीं करूंगा. ये एज इट इज. नीचे से डिनोमिनेटर में r पावर n कॉमन निकालना जरा. और वो मुझे यहां से हिंट मिला है, मैं पहले ही बता देता हूं. ये कॉमन क्या बचेगा पहली टर्म में से? a. नेक्स्ट देखो क्या बच रहा है. AR. नेक्स्ट AR square. और मैच दी लास्ट टर्म ऑल्सो. एग्जैक्टली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो. इफ यू नोट केयरफुली, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये कैंसल, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r पावर n. हेंस प्रूव. तो मैंने यहाँ Sn के फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करे हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. यूज अ सिंपल लॉजिक. Please make a note of it. I'm waiting. Any step which is not clear, do let me know. If A, B, C, D are in GP,
You are to show this result. Since A, B, C, D are in GP, can I say from this, let A is A, but B को ले लिया AR, C क्या लेंगे? AR square. And D will be AR cube. अगेन अगर ये चीज सही सोच लिया, फॉलोड बाय वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट मी कंसीडर LHS. ये रहा मेरा LHS एंड सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, मीन्स ABCD की वैल्यू पुट कर दो. A तो A ही है, B स्क्वायर विल बी A स्क्वायर R स्क्वायर, ये B का स्क्वायर कर दिया, और C स्क्वायर इज A स्क्वायर R4 इनटू, अब B स्क्वायर C स्क्वायर तो चलो यही वाली टर्म्स थी, मैं लिख ही चुका था, A स्क्वायर R स्क्वायर, A स्क्वायर R4, और D स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर R6. फर्स्ट ब्रैकेट में से A स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, what is common from second bracket? A square R square. Everyone, भाई प्लीज, ये कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं चल रही है. I want your participation. Every time everyone is on silent. So 1 plus R square plus R power 4. ये और ये मल्टीप्लाई, A पावर 4 R स्क्वायर, और ये और ये तो सेम आ गए, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4 का होल स्क्वायर. लेट मी कॉल दिस एज 1. अब इसको आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, then we will talk about RHS. AB plus BC plus CD होल स्क्वायर. वेरी सिंपल, बस B की वैल्यू AR, C की वैल्यू AR स्क्वायर, D इज AR क्यूब, एंड इस पूरे का स्क्वायर था बेसिकली A स्क्वायर R क्यूब प्लस A स्क्वायर R पावर AR स्क्वायर R पावर 5. ब्रैकेट में कुछ कॉमन, A स्क्वायर R in the bracket common 1 plus R स्क्वायर प्लस R पावर 4, और पूरे का होल स्क्वायर. बाहर वो चल ही रहा था, ये क्या दे देगा, A4 R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R पावर 4 का होल स्क्वायर. One can easily note from 1 and 2 the result is proved. दोनों LHS RHS इक्वल आ गए. Any doubt to anyone? We have discussed similar questions already. AP में भी आए हैं. So only the hint for this question: if pth, qth, and rth term of a GP are ABC respectively, pth term is A, qth term is B,
rth term is C. You are to prove this result. सबसे पहली चीज, let the GP be A, but check it out. I am using capital alphabets to avoid the confusion जो इस स्मॉल a या इस स्मॉल r से हो सकती थी. ये अलग नोटेशन है, ये इसका pth टर्म के लिए स्मॉल a चूज किया गया है. तो अगर आप गलती से भी ये जीपी नॉर्मल ले लेते हैं ए आर स्क्वायर, सारा क्वेश्चन पहले स्टेप से गलत हो जाएगा. सो प्लीज बी श्योर and understand the reason why I am choosing the values as or writing these as capital A and capital R. ये अगर समझ आ गया, बहुत इजी है इसके बाद. एनीवे, ए पी का मतलब क्या हो गया? जीपी है ये AR ए. raised to power P minus 1. यस. और अब कैपिटल की टर्म में चलेगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल आर, क्यू माइनस 1. So this way I have the values of A, B and C available with me. Consider LHS. I don't know why I have a feeling कि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है. चलिए, A ये LHS ले लिया, A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, B की वैल्यू निकाल चुके हैं and C is also calculated. So using 1, 2 and 3 substitute कर दीजिए. A R P माइनस 1 और इस पूरे की पावर Q माइनस R. B की जगह क्या लिख सकते हैं? A R Q माइनस 1 इंटू R माइनस P. C is A R R minus 1 into P minus Q. Please check out your last class notes. This question is already solved. मैंने यहाँ पर मुझे याद आ गया लिखने में गलती करी थी, एक स्टूडेंट ने इसको करेक्ट करवाया था. सो A की पावर Q माइनस R, ये पावर्स बस सिंप्लीफाई आप कर देंगे. ये मैंने सिर्फ इसे एक्सपैंड करा है. सेम वे इसे लिख दीजिए और इसे A की पावर कंबाइन कर देंगे. बेस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम, पावर आर एडेड, ऐसे ही R की पावर आ जाएंगी. यू विल check out in your homework A की power 0 into R की power 0. Any number power 0 is 1. Hence proof. Please check this out. Any doubt to anyone? Chale, check out this question.
तो ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था. आई वाज सर्चिंग फॉर दैट. तो ऑलरेडी ये हो चुका था. बट दिस शोज हाउ मच ऑफ यू आर एक्चुअली अटेंटिव एंड यू आर इवन वॉचिंग और लुकिंग एट द पीडीएफ ऑल्सो. कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं. If ABC are in AP, BCD are in GP, 1 by C, 1 by D, 1 by E are again in AP, show that A, C, E are in GP. ये शो करना है लास्ट में. तो स्टेप बाय स्टेप मैं मूव करूंगा. ABC are in AP. AP में होने का मतलब क्या हो गया? Twice the middle is equal to sum of extremes. और जनरली हम b की वैल्यू ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे. आइडिया लग जाएगा बाद में क्यों किया है. अब बी सी डी दे आर इन जीपी. स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. फिर थर्ड कंडीशन 1 by C, 1 by D, 1 by E. They are in AP. Twice the middle will equal to sum of extremes. और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ये CE आ गया और यहाँ LCM E प्लस सी. टेक द रेसिप्रोकल. तो D अगर आप ध्यान से देखें 2CE अपॉन E प्लस सी या चलो C प्लस E आ जाएगा. So from the given three conditions, I have got these three values. अब फाइनल पार्ट पे आते हैं. हमें क्या करना है? टू शो ACE they are in GP. That is C square is equal to AE. Consider LHS. LHS कितना है जो प्रूव करना है? C स्क्वायर. हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं C स्क्वायर की वैल्यू. बी डी के इक्वल. बी कितना है? ये रहा A plus C by 2. A प्लस C बाई 2. B कितना है? ये रहा. वन कैन इजिली नोट ये किसके इक्वल चल रहा था? C स्क्वायर के. 2 से 2 कैंसल और एक C से C भी कैंसल हो जाएगा. तो C यहां बचा एंड C प्लस E. क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और इधर E इंटू बच गया A प्लस सी. ये कैलकुलेशन अब आपके ऊपर है. सिंपल कैलकुलेशन है. EC से EC कैंसल. C स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? EA या AE. This imply A, C and E are in GP. Hence proved. So a very systematic way, the systematic approach to be followed, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. We already have considered this concept in the previous class. शायद ही याद हो.
जीपी में अगर हमें, अच्छा एपी का हमने किया हुआ है, तो जीपी के लिए अगर आपको 3 टर्म्स लेनी है, if the product is given, this is important condition, if product is given, then only I will prefer to take the 3 numbers in GP as A by R, A and AR. Just for the reference मैंने ये 4 term और 5 term दे दिया है, but in exam we are focusing only based the problems based on 3 terms. But specially ये नीचे बता दिया है, if the product is not given, तब आपको नॉर्मल जीपी वाली टर्म से लेनी है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. So please make a note of this rule. Particularly 3 terms are to be taken as A by R, A and AR. What is the benefit? और क्यों लिया वो भी चलो अगर मैं क्विकली आप बता दूं. जीपी में होने का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और थर्ड और सेकेंड ये रेशो सेम होनी चाहिए. आप चेक कर लीजिए, ये भी आर है और ये भी आर है. सो कॉमन रेशो इज मेंटेन्ड एज सेम. Therefore we take these 3 terms in GP. So the question for your homework, it may be possible कि ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो, ये आपको सोचना है. So please make a note of this. वो PDF में शेयर कर ही रहा हूँ. We already have considered the question like this. So this is again very simple. Another very simple question to solve. AP and GP का mix question है. So 3 questions are the part of your homework. Please mark your attendance, everyone, in the chat box. And then you can leave the class. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye. Please complete the homework. 5-6 क्वेश्चन क्लासरूम में डिस्कस होते हैं और 2-3 अगर होमवर्क में दिए हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो आप 10 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं. चलिए, ऑल द बेस्ट.